Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 7th video lecture of Professional Ethics, Accountancy of Lawyers and Bar and Bench Relation. In the last two videos, which were related to contempt of court, we had seen what is contempt of court and what constitutes civil contempt, what constitutes criminal contempt. Along with it, we had seen the constitutional provisions which support the idea of contempt of court. Now in this video, we will see the constitutional validity of contempt of court as decided by Supreme Court in various cases, and also the jurisprudential question of freedom of speech and expression versus contempt of court. So without doubt, one of the most famous highlighted recent case of contempt of court was of Prashant Bhushan. Prashant Bhushan, an advocate practicing in Supreme Court, was held guilty of contempt of court for his two tweets which were defaming the Chief Justice of India, and therefore held as contempt of court, as it was attack on the whole judiciary as per the Supreme Court in its case. He was fined 1 rupees punishment, which he crowdfunded from his lawyer. Now in this particular case I am not teaching in this video, but you have to yourself search for the judgment from Supreme Court website and study this case. See what were the facts of the case and how the court decided the case. This is quite famous case, so you will also find various news reports, news articles regarding the same. You should study it to broaden your scope of understanding it. Now the first thing, that why we are studying constitutional validity of something. Even before that, what is constitutional validity? See, Constitution of India is kind of document which forms the basis of all other laws. समझ रहे हैं ना, सारा जो कानून बनता है इस देश में वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इवॉल्व होके बनता है. अगर केल्सन के वर्ड्स में कहे तो वो ग्राउंड नॉर्म होता है. इट इज़ अ ग्राउंड नॉर्म ऑफ इवॉल्विंग ऑल अदर लॉज. सो इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स जो हमें मिले हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्या कहीं ये कानून उन फ्रीडम्स को कर्ब तो नहीं करता. दिस इज़ very important for every law, whether it is Unlawful Activities Prevention Act, NSA, National Security Act, all other laws जो आपके अधिकारों को कम करते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से चेक करते हैं कि क्या कि उनके इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से वो लॉज सही हैं या नहीं हैं. तो सिमिलरली हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी वैसे ही चेक करेंगे. तो एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देयर आर एटलीस्ट 6-7 आर्टिकल्स which support the idea of contempt of court. Like Article 129 says that Supreme Court is court of record and therefore it has all the powers which a court of record should have. और all the powers में क्या आते हैं, contempt punishing for its contempt भी आता है. तो contempt of court Article 129 से validity मिलती है उसको. Similarly हाई कोर्ट के केस में Article 215 से validity मिलती है. अगेन 144 में, 141 में, 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कोई कानून पास कर सकता है या मैनेज कर सकता है कि कैसे उसको कोर्ट चलाना है अपना. दीज पावर्स आर देयर. अगेन 261 में भी सिमिलरली कोर्ट को कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स को सपोर्ट करने का आइडिया मिलता है. नाउ इन आर्टिकल 21 एंड 191A ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के थोड़े अगेंस्ट जाते हैं, मतलब इस लॉ को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं. आर्टिकल 21 कहता है एवरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए विच कैन ओनली बी कर्टेल्ड बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. और जैसा कि मेनका गांधी केस में कहा गया है, दिस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ आर्टिकल 21 शुड बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सिमिलरली आर्टिकल 19(1)A जो है हमारा, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है, जिसमें कोर्ट्स ने हेल्ड किया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन along with it also has right to freedom to publish news articles. तो ये प्रेस को एक फ्रीडम देता है आर्टिकल 19(1)A कि प्रेस जो है वो कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर सके, जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके. तो इन आर्टिकल्स वर्सेस इन आर्टिकल्स की डिबेट जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमेशा चलती है. अब पॉइंट ये है कि आर्टिकल 19(1)A में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. तो एक तरफ तो आर्टिकल 19(1)A आपको पावर देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की. दूसरी तरफ इट ऑल्सो हैज़ 8 रिस्ट्रिक्शंस
जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे क्वेश्चन उठे। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तीसरा रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर हार्म हो। फोर्थ है डिसेंसी एंड मोरालिटी। फिफ्थ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एक्सप्लिसिटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है आर्टिकल 19 में। अब उसके बाद आता है डिफेमेशन, फिर आता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और लास्ट है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बट एक जो बड़ा क्वेश्चन उठता है इसमें हमेशा कि ये इतने ब्रॉडली डिफाइंड डिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कुछ भी कहेंगे कहीं ना कहीं इनके अंदर आ जाएगा। वट एवर यू स्पीक विल फॉल इन वन और द अदर इफ द स्टेट वॉन्ट्स them to hold on as a restriction for contempt of court। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हाउ टू एग्जैक्टली डिमार्केट द बाउंड्री दैट व्हाट शुड बी द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस। तब हम आगे देखते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इवॉल्व हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूज़ किया जाता था फ्रीडम फाइटर्स के वॉइस को कर्ब करने के लिए, दैट वाज अ फैक्ट। बट पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, मतलब आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिटेन किया गया। रिटेन ही नहीं किया गया, एक नया लॉ बनाया गया बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये लॉ इसलिए नहीं बनाया गया था कि कोर्ट्स को पावर देनी थी, ये लॉ इसलिए बनाया गया था कि कोर्ट्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना था, ये आपको याद रखना होगा। तो फिर कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करना भी शुरू किया। तो जो फर्स्ट पॉपुलर केस हुआ वो आया सीके दफ्तरी वर्सेस ओपी गुप्ता का। सीके दफ्तरी वो द सुप्रीम कोर्ट लॉयर, और उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए बार काउंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप ये केस फाइल करिए, ये ओपी गुप्ता है, ही हैज सर्कुलेटेड अ बुकलेट इन पब्लिक परपोर्टिंग टू एस्क्राइब बियास एंड डिसऑनेस्टी टू जस्टिस शाह वाइल एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। इसको सीके दफ्तरी साहब ने फाइल किया। नाउ दिस पिटीशन, उनका कंटेंशन ये था कि जो बुकलेट है ये सिर्फ उस जज के एज ए पर्सनल कैपेसिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा रही है, ये पूरी जुडिशरी को स्कैंडलाइज कर रही है, इसीलिए इट शुड बी हेल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एग्जामिन किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अब ओपी गुप्ता ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर दिया था इस केस में। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा, और इट लेड डाउन दैट द टेस्ट इन ईच केस इज वेदर द इम्पंजेंट पब्लिकेशन is merely a defamatory attack on the judge, or whether it will interfere with the due course of justice or proper administration of justice of court। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, बट उसको थोड़ा सा और उसके बाउंड्री को थोड़ा और कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी केस में यू हैव टू सी द टेस्ट वेदर इट इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन जज और द अटैक ऑन होल जुडिशरी। अगर डायरेक्ट अटैक ऑन जज है सिर्फ एज इन अ पर्सनल कैपेसिटी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस आता है इंपॉर्टेंट केस, रे एस मुलगांवकर और वर्सेस अननोन का। इस केस में अगेन इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें वो जजेस के कैरेक्टर के बारे में कमेंट किए आर्टिकल में, उसको लेके भी केस फाइल हुआ। फिर इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 6 प्रिंसिपल डिटरमाइन किए कि क्या इन प्रिंसिपल्स के वैलिडिटी के ग्राउंड पे कोई चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी या नहीं होगी। ये बड़ा फेमस केस है क्योंकि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बहुत ही लिबरल प्रिंसिपल्स दिए। उन्होंने कहा कि लोगों के पास क्रिटिसाइज करने का पावर होना चाहिए, ये उनकी फंडामेंटल राइट है, और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर टर्म नहीं यूज़ किया था उन्होंने, पर उन्होंने ये कहा था कि ओनली इन रेयर केसेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर यूज़ करनी चाहिए। और फिलोसफिकल बैकग्राउंड भी दिया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पनिश करके किसी कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको क्रिटिसिज्म को सुनना पड़ेगा, कोर्ट्स को क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहना पड़ेगा, और कोर्ट्स को क्रिटिसिज्म को सुन के और अच्छा इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि क्रिटिसिज्म ना हो। तो इस केस में ये कहा था जस्टिस कृष्णा अय्यर ने। नेक्स्ट केस आता है शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने वाइडन किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वाइडन किया था। कोर्ट ने कहा था कि ब्रॉडर राइट ऑफ सिटीजन टू क्रिटिसाइज द सिस्टमैटिक इनएडिक्वेसीज इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जुडिशरी इज नॉट exempted फ्रॉम सच criticism, judicial institutions are and should be made of
stronger stuff intended to endure the thrive even in such hardy climate. But this freedom and privilege to criticize the proceedings cannot be used during the pendency of person who are parties and participants therein. तो एक तरफ तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइडन किया पावर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन सबके पास है, सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए जुडिशरी भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, तो उसको भी एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता क्रिटिसिज्म से। क्रिटिसिज्म जुडिशरी की भी होगी। पर इसको कहते ही कहते सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट और ऐड किया था अंतिम इस केस में, कि वो लोग लेकिन कमेंट ना करें केसेस पे जो केसेस सबजुडिस हैं, मतलब जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उस पर आप हार्श कमेंट ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि केस पे इफेक्ट पड़े। ठीक है, अगर आप केस चल रहा है जैसे सहारा वाले केस में हुआ था, सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तब पेपर्स में पब्लिश कर दिए बड़े बड़े आर्टिकल्स कि सहारा बेकसूर है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अड़े हाथों लिया था कि जब केस चल रहा है उस बीच में आप देश के मीडिया हाउसेस में ये पब्लिश करवा रहे हैं, जिससे पब्लिक के माइंड में अलग व्यू क्रिएट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गुस्सा आया था उस केस में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलाया था, बट काफ़ी गुस्सा आया था। उसने यही कहा था कि जब मैटर सब जुडिस हो तो मीडिया कमेंट्स से बचना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखें तो वी विल फाइंड दैट इट हैज़ बीन मोर ऑफ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन देन लीगल क्वेश्चन। जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है और उनको वार्न किया जाता है, पनिश नहीं किया जाता, क्योंकि वो इतने बड़े लीगल पर्सनालिटी थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी थोड़ा बैक ऑफ होता है। बट जब EMS नामबुदरी पद के लिए लगता है, जो केरल के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको पनिश कर दिया जाता है। सिमिलरली जस्टिस मिनिस्टर शिवशंकर के ऊपर लगता है तो उनको भी एक्सोनरेट कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जुडिशरी के वो एडवोकेट थे और मेंबर थे बार के। जस्टिस कृष्णा अय्यर के ऊपर भी जिन्होंने इस जजमेंट में एस मुलगांवकर जजमेंट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को और लिबरल कर दिया था, मतलब बहुत उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है केरल हाई कोर्ट के द्वारा जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन उस केस में भी उनको छोड़ दिया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने जस्टिस को और इंक्रीज़ करने के लिए क्वालिटी ऑफ जस्टिस को इंक्रीज़ करने के लिए क्रिटिकल कमेंट्स दिए थे। बट जब वही क्रिटिकल कमेंट पास होता है जस्टिस काटजू द्वारा, तो जस्टिस काटजू को कोर्ट ने बुलाया जाता है और उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है। वो अपॉलॉजी देते हैं कोर्ट में, तब जाके उनको छोड़ा जाता है, अपॉलॉजी पे छोड़ दिया जाता है। पर जब जस्टिस कर्णन कहते हैं ये बात, मद्रास हाई कोर्ट के क्रिटिकल कमेंट्स पास करते हैं, तो उनको पनिश कर दिया जाता है। थोड़े फैक्ट्स अलग थे तीनों केसेस में, लेकिन जुडिशरी अलग अलग केसेस में अलग अलग व्यू पॉइंट रखी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो ये अपने आप में क्वेश्चनेबल चीज़ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट का कोई क्लियर कट स्टैंस नहीं रहा है, उसका हमेशा वाइडनिंग, इट हैज़ एक्टेड डिफरेंटली इन डिफरेंट केसेस। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। इसको आप फर्दर पढ़ सकते हैं, देखिएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली डू स्टडी 2-3 recent cases which I have not discussed. You have to do that on your own. Study 2-3 recent cases of contempt of court, especially maybe you can study of Justice Karnan or even of Prashant Bhushan, to understand how contempt of court power is being used in recent past, to understand this thing. Thank you.